نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریڈ کلر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے، اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجیے جس سے آپ کو تازہ اپڈیٹ ملتی رہے۔ صدر و معتمدین ذمہ دار محترم جناب شاہ نواز صاحب، میرے عزیز دوستوں اور جناب رنجیت ریڈی صاحب جو چوڑلہ پارلیمانی حلقے سے TRS کے امیدوار ہیں، آج کی اس میٹنگ کو بلانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ مجلس اتحاد المسلمین نے اس بات کا فیصلہ لیا ہے کہ تلنگانہ کے 16 پارلیمانی جو حلقے جات ہیں وہاں پر مجلس TRS پارٹی کی تائید کرے گی، اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ہم نے اسمبلی انتخابات میں بھی جہاں جہاں سے مجلس کے امیدوار تھے وہاں پر ہم نے اپنی پارٹی کے لیے کام کیا اور پارٹی کے امیدوار کے لیے بھی کام کیا۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں، خاص طور سے حلقہ اسمبلی راجندر نگر کے MIM پارٹی کے تمام ذمہ داروں کا کہ انہوں نے مجلس کے امیدوار جناب رحمت کی تائید میں اپنے ووٹ کا استعمال کیا، محنت کی، جستجو کی، اور یہ اللہ کی کیا مرضی کہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ مگر اب ایک پارلیمنٹ کا الیکشن ہے اور ہم تمام کو یہ سمجھنا ہے کہ رنجیت ریڈی صاحب MIM پارٹی کے امیدوار ہیں، یہ یقیناً مجلس کے تائیدی امیدوار ہیں، اور ہم کو یہ پوری کوشش کرنا ہے کہ پارلیمانی حلقے چوڑلے سے ایک بہت بھاری اکثریت کے ساتھ یہاں سے ہم رنجیت ریڈی صاحب کو کامیاب کریں۔ اور اس لیے میں آپ تمام سے اپیل کر رہا ہوں کہ راجندر نگر اسمبلی حلقے کے لیے یہی آفس رہے گا۔ جناب محترم شاہ نواز صاحب اس آفس کے ذمہ دار تھے، وہ ذمہ دار رہیں گے۔ رحمت صاحب راجندر نگر اسمبلی کے میں نے ان کو انچارج بنایا ہے، وہ اس میں کام کریں گے۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ ہم اپنے دوروں کا آغاز کریں، جلسوں کا آغاز کریں، اور گھر گھر جا کر ہم کو یہ بات اور پیغام دینا ہے کہ 11 اپریل کے دن جو پارلیمانی انتخابات ہونے جا رہے ہیں، چوڑلہ کے پارلیمنٹ کے حلقے سے یہاں سے رنجیت ریڈی صاحب TRS کے امیدوار کو ووٹ دے کر کامیاب کریں گے۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ تلنگانہ میں انشاءاللہ جب 17 پارلیمنٹ کی سیٹ پر 16 TRS کے ایک مجلس کی جب سیٹ 17 سیٹ پر جب کامیابی حاصل ہوگی تو یہ دلی میں ہمارے لیے ایک غیر کانگریس اور غیر BJP حکومت تشکیل دینے میں بہت مددگار ثابت ہوگا۔ یقیناً آپ اور ہم تمام کی کوشش یہی ہے کہ دوبارہ BJP کی سرکار نہ بنے، دوبارہ ہندوستان کا وزیر اعظم کے ایک عظیم عہدے پر ایک ایسا شخص فائز ہو جو ہندوستان کے بھائی چارگی کو، جو ہندوستان کے سیکولرزم کو، جو تلنگانہ میں جو ہم نے مثال قائم کی ہے کہ 5 سال میں کہیں پر بھی الحمدللہ پرامن تلنگانہ رہا، اس طریقے سے سب طبقوں کو ساتھ لے کر چلنے والے ایسے شخص کو ہندوستان کا وزیر اعظم بننے کا موقع ملے۔ اور اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم ایک ایک پارلیمنٹ کی سیٹ پر صحیح طریقے سے اپنے ووٹ کا استعمال کریں۔ یقیناً حیدرآباد کی پارلیمنٹ کی سیٹ پر کوئی کمپرومائز نہیں ہے، وہاں سے آپ کو مجلس ووٹ دینا ہے۔ اور رہا سوال دیگر 16 پارلیمنٹ کی سیٹیں، چاہے سکندرآباد ہو، ملکاجگیری ہو، چوڑلہ ہو، میدک ہو، نظام آباد ہو، کریم نگر ہو، پیدا پلی ہو، محبوب نگر ہو، ناگر کرنول ہو، عادل آباد ہو، ایسے جتنے بھی 16 پارلیمنٹ کی سیٹیں تلنگانہ میں، میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ آپ بے خوف ہو کر بغیر جھجک کے آپ TRS اور KCR کا ساتھ دیجیے۔ تو میں آپ تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ چوڑلہ پارلیمانی حلقے میں کارتک بتا رہے تھے کہ مہیشورم میں ایک جلسہ کرنا ہے، راجندر نگر میں بھی 2 جلسوں میں بھی آؤں گا، اور انشاءاللہ وقارآباد اور تانڈور میں بھی میں جا کر جلسوں سے مخاطب کروں گا، وہاں پر لوگوں کو اپیل کریں گے کہ چوڑلہ پارلیمانی حلقے سے رنجیت ریڈی صاحب کی کامیابی حاصل ہو۔ جو سابقہ میں TRS کے MP تھے، انہوں جو ہے بیچارے
अजीब व गरीब किस्म के एक अजीब बदकिस्मत थी, बन गए MP, मगर इनको वफादारी क्या है इनको नहीं मालूम। वो जो है दीवार कूद के भागे सो भागे, ऐसी इमारत में जाके पना लिए जो खंडेर हो रही है। कांग्रेस पार्टी के हर लोग अपनी पार्टी को छोड़ कर जा रहे हैं। उसकी वजह यह है कि वो जानते हैं कि कांग्रेस में कोई मुस्तकबिल नहीं है, और तेलंगाना की आवाम ने फैसला कर लिया कि हमको कोई भी कौमी पार्टी की जरूरत नहीं, चाहे कांग्रेस हो BJP हो। और याद रखिए, खास तौर से अक़लियतों के लिए, दलितों के लिए, कमजोर तबकात के लिए, मुसलमानों के लिए कौमी पार्टियां हमारे लिए मुज़ीर हैं। इलाकाई पार्टियां हमको फायदा पहुंचाती हैं। इसीलिए आप देखते हैं कि तेलंगाना में किसी भी जगह पर हिंदुस्तान में इतने बड़ा काम अक़लियतों के लिए किसी ने नहीं किया। 200 रेजिडेंशियल स्कूल हैं, 50,000 मुसलमान बच्चियां तालीम हासिल कर रहे हैं। मुसलमान बच्चे ओवरसीज स्कॉलरशिप स्कीम के तहत उनको पैसे मिल रहे हैं, लोन नहीं, ग्रांट मिल रहा है। तो ये तमाम काम क्यों हो रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर एक इलाकाई रीजनल पार्टी है। और इस बात को ज़हन नशीन कर लीजिए कि इंशाअल्लाह ताला दिल्ली में BJP की तायीद करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। RSS BJP की तायीद नहीं की जाएगी, ना की जा सकती है इंशाअल्लाह ताला। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप रंजीत रेड्डी साहब की तायीद में, क्योंकि ये मजलिस के मेंबर्स का, अरकान का, सदर मुतमदीन का अहम इजलास है, मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि हम अपना काम, ये जिम्मेदारी लें और यहाँ से मजलिस के तायीद उम्मीदवार रंजीत रेड्डी साहब को कामयाब करने की पूरी कोशिश करें। और मैं बजाते खुद मैं इनको जानता हूँ, ये अच्छे आदमी हैं, ये अच्छी तबीयत के आदमी है। देखिए, इलेक्शन आएंगे जाएंगे, मगर रंजीत रेड्डी साहब काम करना चाहते हैं और वो एक खुले दिल के साफ जहन के आदमी है। ये एक अच्छे इनका कारोबार है। ये सियासत में इसलिए नहीं आ रहे कि यहाँ से कुछ इनको करना है या कुछ कमाना है, बल्कि मुझे पूरा यकीन है कि इंशाअल्लाह जब अल्लाह इनको कामयाब करेगा तो पूरे हल्के असेंबली चिवड़ा में जो डेवलपमेंट के काम रुके हुए हैं, आप सोचिए, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, जो कांग्रेस का उम्मीदवार है मरहूम फायद सालार मिलत 6 मरतबा हैदराबाद की पार्लियामेंट की सीट की नुमाइंदगी करने का उनको एजाज हासिल रहा। उसके बाद अल्लाह ने मुझे मौका दिया। माने 2009 के बाद चिवड़ा, विकाराबाद, तांडुल ये इलाके निकल गए। ये जो कांग्रेस का उम्मीदवार है, विकाराबाद के पास एक नाग समंदर, एक तालाब है, और उस तालाब से वहाँ के मुकामी मछेरे और मुसलमान मच्छियाँ पकड़ के अपना जिंदगी गुजारते। वहाँ के लोग असेंबली इलेक्शन से पहले मेरे पास आके आंसू से रोए, मुसलमान भी और वहाँ के गैर मुस्लिम। बोले क्या हुआ? बोले साहब, बड़े साहब इतने साल MP थे, कभी हमारे से एक मच्छी ने पूछे तालाब की। आप 5 साल थे, आप तो आए भी है उधर। जब से ये आदमी कांग्रेस का MP बना है, वहां पर वोटिंग शुरू कर दिया और महीने को 2 लाख रुपए उठा के ले जाता वहां से। आप सोचो कि जो मच्छी पकड़ के कारोबार जिंदा रहते, इनको इतने बड़े आदमी हैं, इन्हों इतने बड़े खानदान के इनका ताल्लुक है, मगर गरीब के पेट पे लात मारता। अजीब और गरीब किस्म का आदमी है। इलेक्शन के दौरान गद्दारी के TRS से। और मेरा मानना है कि सालार एक बात बोलते थे कि अगर इंसान का ज़र्फ देखना है, उन्हें देखो, इलेक्शन में उन्हें धोखा दिया तो उन्हें कम ज़र्फ। तो ये सालार हमारा उसका एक इलेक्शन में जो धोखा देता, गद्दारी करता, उन्हें ज़र्फ वाला नहीं हो सकता। मगर रंजीत रेड्डी साहब एक अच्छे आदमी हैं और मुझे पूरा यकीन है कि इनकी मिजाज और इनकी सादगी यकीनन चिवड़ा के अवाम के लिए बहुत फायदेमंद रहेगी। और के चंद्रशेखर राव को मेरा ज़ाती तौर पर मेरा बोलना ये है कि इनमें काबिलियत है हिंदुस्तान का वज़ीर आज़म बनने। अब अल्लाह गैब के फैसले तो अल्लाह करने वाला है, इज्जत अल्लाह देने वाला है। मगर ये जो हिंदुस्तान में डिबेट चली नहीं, या मोदी या राहुल, अरे ये कब तक राहुल केतु चलता रहेगा? अरे भाई, क्या मुल्क में कोई काबिल लोग नहीं है? कि यही 2 लोग हैं? क्या इलाकाई रीजनल लीडर्स काबिल नहीं है हिंदुस्तान को आगे लेके जाने के? यकीनन है, मगर इसके लिए जरूरी है कि हम एक पार्लियामेंट की सीट पर ना BJP को कामयाब होने दें, ना कांग्रेस को कामयाब होने दें। तो मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि रंजीत रेड्डी साहब
के उम्मीदवार हैं, मजलिस के ताईद उम्मीदवार हैं, इस ऑफिस से आपको ज़रूरी इत्तलात मिलेंगी। रहमत साहब तमाम जिम्मेदारान दौरा करेंगे, हमारे दोनों कॉर्पोरेटर्स हैं मिसबाउद्दीन और सब लोग रहेंगे यहाँ पर, साबिक़ा कॉर्पोरेटर्स भी हैं। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि हमको असेंबली इलेक्शन की तरह मेहनत करना है और 50,000 नहीं बल्कि उससे ज़्यादा वोट यहाँ से रंजीत रेड्डी साहब को दिलाना है। तो इंशाअल्लाह ताला यही चंद ज़रूरी बातें मुझे आप तक बताना था। मैं रंजीत रेड्डी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ क्योंकि इनको और भी इंतखाबी मुहिम में जाना है, तो इसलिए इनको जाने दीजिए और आप लोग रुकिए और खाने का इंतजाम है ना, तो आप काम का इंतजाम है, खाना खा के जाइए। मगर पूरा प्रोग्राम यहाँ से बनेगा। हमारे शाहनवाज साहब है यहाँ पर, बेचारे मेरी तरफ से काफ़ी दुनिया में बदनाम भी हो जाते, मगर अच्छा है और बदनाम होना है। तो बहरहाल मेरी आपसे गुजारिश है कि ज़रा तवज्जो लीजिए, काम करिए, मेहनत करिए, एक एक आदमी को समझाइए और आपको जो मटीरियल होगा, जो पोस्टर होगा, आप फिक्र मत करिए। जैसा असेंबली में काम हुआ था वैसे ही काम होगा, तो आप आराम से खुल के काम करिए। शमशाबाद हो और मैं हमारे शमशाबाद में और नारसंगी के लोगों से कहूँगा कि जब रंजीत रेड्डी साहब आएंगे, रोड शो करेंगे, आप लोग साथ में काम करें। KTR का एक रोड शो होगा राजेंद्र नगर में, उसमें भी आप तमाम को शिरकत करना है। तो जहाँ जहाँ जलसे होंगे TRS के या रोड शो होगा, उसमें आप तमाम को शिरकत करना है, ताकि हम एक मिसाल कायम कर सकें और बता सकें दुनिया को कि ये सेकुलरिज्म है। सेकुलरिज्म का मतलब ये नहीं कहा कि खाली ईद के दिन आके उनके पास, दिवाली के पास जाके मिठाई खाना नहीं। सेकुलरिज्म का मतलब ये कि वोट डालना एक दूसरे को, ये सेकुलरिज्म की कामयाबी है। खाली बैठ के भाई भाई वो सब बहुत 70 साल से यही चल रहा था, कुछ होने वाला नहीं है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि वोट डालिए और बेखौफ होकर वोट डालिए। मैं आपसे कह रहा हूँ कि हमको TRS को कामयाब करना है, रंजीत रेड्डी साहब को कामयाब करना है। मैं रंजीत रेड्डी साहब की तरफ से आपको शुक्रिया अदा करता हूँ। इनको बहुत मुकामात पे जाना है, कल ही नॉमिनेशन दाखिल किए, बहुत बड़ा पार्लिमानी हल्का है, यहाँ से लेकर करीब 120 किलोमीटर तक इनका पार्लियामेंट का हल्का है। तांडूर के कर्नाटका का बॉर्डर लगता है उसको, तो वहाँ तक इनको काम करना है, बहुत वक्त बहुत कम है। तो हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं सर। आपको इंशाल्लाह हम पूरा कोशिश करेंगे कि एयरपोर्ट देने अल्लाह आपको MP बनाए और आप बस इस हमारे हल्के की का ख्याल रखिए, यहाँ के गरीबों का ख्याल रखिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।